My name is Mohammad Junaid Firoz. I am working as assistant manager and I am the product officer of surgical sector at TDAP. With me, we have our Director General, Dr. Hamid Ali, who is heading our engineering and mineral division. I welcome all the dignitaries and worthy participants in this webinar. The objective of today's webinar is to share the opportunities available in Nigeria and how we can tap these opportunities and what support mediums are available. Today we have representation from Trade Development Authority of Pakistan, Ministry of Commerce, Surgical Instrument Manufacturers Association of Pakistan, SGS, and RTIO posted in Nigeria. Few important points which I would like to mention before the initiation of this webinar. We have arranged question and answer session in the last. In previous webinar, we faced some intruders. So if anything same sort happens, then we'll reconnect our Zoom link with updated ID. So let's start this webinar with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would request Dr. Hamid Ali, Director General, Engineering and Mineral Division, for welcome speech. Thank you, Janab. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to everyone. It is my privilege to welcome Mr. Zishan Tariq, Chairman, Surgical Instruments Manufacturers Association, Jahangir Bajwa Sahab, Group Chairman, Surgical Instruments Manufacturing Association, Atif Rashid Sahab from SGS, Ali Tamkeen Bhatt, our Commercial Counselor, now they are called DIOs from Nigeria, Mr. Mudassar, our Section Officer at Ministry of Commerce. And to all the worthy participants, I'm sure there are a lot of worthy participants there in this webinar who acquire the knowledge about surgical registration procedures, especially in Nigeria. This webinar is planned as a series of webinars, one of the webinar of a series of webinars to apprise about the opportunities available in Nigeria for our surgical sector, which is our one of the most important sector for our exports. As you all know that our surgical exports to Nigeria is meager US dollar 1.1 million only, whereas Nigeria imports the same product group from the world worth $3.3 million. और ये भी आप सबको पता होगा कि like our competitors are doing very well. Like India is having 73% of surgical market share in Nigeria. They might have some diverse products, but still with our entrepreneurship in this sector, we can really improve it a lot. Pakistan's surgical sector has already proven its worth worldwide. And as far as Nigeria is concerned, it has got two distinct benefits. It is an established trading hub for West Africa. So this is a launching pad that not only Nigeria, but we can penetrate into African market for market access. Nigeria is also the biggest and most populated country in Africa. We really look forward to increase our surgical exports in Nigeria, which is only possible with the joint efforts of stakeholders from both sides. I'm sanguine that this meeting would provide fruitful results, and
There will be much to ask from our commercial council in Nigeria by our association. Now I would like to request Junaid to further walk the talk. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Atif Rashid from ACERS SGS to share the support available for our exporters for exporting surgical to Nigeria. Mr. Atif Rashid. ऊपर और ऊपर सबसे लास्ट. Hello. Ji Atif sir, we can hear you. There are two type of procedure. First one is route A, unregistered process, where we require product certificate as well then need inspection and documentation requirement as per country instructions. The second process is route B, which is called against SOR, Statement of Registration. Uh, Today my topic is product registration for 1 year. Mm, I always recommend to those clients who are having the shipments to Nigeria. My first recommendation is to register their goods under SOR, Statement of Registration. To avail the benefit, they can easily move the shipment to Nigeria to get SONGAP certificate for custom clearance without any conformity assessments in each shipments. Uh, well, now I come to the point and let you know that what is the procedure to get the SON SOR. Well, this is very easy process. We just need lab test reports and marking detail as per country standards. Uh, Initially, we just raise a query and request to client to fill the RFC form. We give the RFC request for certificate form to client to fulfill the country standards and requirements, and we just required HS code and product description to evaluate and summarize to client the mandatory marking and testing requirement as per Nigerian standards. Once client return us RFC form with HS code and product description, then we evaluate and then we provide the mandatory requirement to Hello. client. Hello, can everybody hear me? Ji Bajwa sir. Okay, I was talking about the आतिफ साहब okay. आतिफ साहब Hello. जी आतिफ साहब एक गुजारिश करनी थी. Hello, Yes. Atif. Yes. Yeah, yes. Ji, ji. I think it will be more beneficial if you please give your presentation in Urdu. Okay, जी, मैं fine. भी यही Okay, कहने fine. लगा. ओके. अच्छा, मैं आपको उर्दू में ही प्रेजेंटेशन दे देता हूँ ताकि जितने यहाँ पर क्लाइंट्स हैं उनको ज़्यादा इजी हो जाए और ताकि कोई जी, क्वेश्चन जी, भी जी. हो तो वो मुझसे इजीली रेज कर सकें. तो बेसिकली जो नाइजीरिया में सोनकैप सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसके प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक रूट ए होता है और एक रूट बी होता है. और मैं बहुत से क्लाइंट हैं उनको रूट ए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें क्लाइंट की डबल फी चार्ज होती है. एक उसमें हमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है और दूसरा ये है कि उसमें पीसी सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना पड़ता है जो $300 का होता है. और उसके बाद फिर वो क्लाइंट जो है वो सोनके की पेमेंट जो है पे करते हैं, जो क्लाइंट को डबल पेमेंट जो है वो चार्ज हो जाती है क्लाइंट में. इसलिए मैं हमेशा जो है क्लाइंट को रेकमेंड करता हूँ कि वो रूट बी, जो कि आज मेरा टॉपिक भी है, और रूट बी में हम जो है वो क्लाइंट को 1 साल के लिए जो है वो रजिस्टर्ड कर देते हैं SOR के अंदर, जो स्टेटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो एक सर्टिफिकेट है जिसमें हम क्लाइंट की प्रोडक्ट को
वेरीफाइड कर देते हैं और क्लाइंट को एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, और उसके बाद जो है क्लाइंट एवरी शिपमेंट्स जो भी सोनकैप लेना चाहेंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट फिजिकली और रिमोटली इंस्पेक्शन, वो अपना सर्टिफिकेट विदाउट एनी हैजर्ड वो अपना सर्टिफिकेट हमसे गेट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जस्ट क्लाइंट को एक आरएफसी फॉर्म हम लोग दे देते हैं, और क्लाइंट जो है वो एचएस कोड और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्राइब करके हमें दे देते हैं। उसको हम एफिलेट करते हैं, और उसके बाद जो है जो भी मैंडेटरी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है हम वो क्लाइंट को समराइज करते हैं, और क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई भी एक्रेडिट 17025 की लैब से वो टेस्टिंग करवा सकते हैं एज पर आर स्टैंडर्ड्स जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और इन केस के अगर क्लाइंट के पास ISO 9001 की ISO लैब है, तो वो हमें इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी दे सकते हैं। जो पैरामीटर मैं क्लाइंट को समराइज करूंगा वो उस पैरामीटर के अगेंस्ट जो है अपने इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट हमें दे सकते हैं। और सेकंड वन ये कि आपकी मार्किंग लेबलिंग जो है वो भी जो स्टैंडर्ड्स मैं आपको समराइज करूंगा उसके दो चीज़ें सिर्फ हमें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 लैब टेस्टिंग, और नंबर 2 मार्किंग लेबलिंग। दो चीज़ें जब कंप्लायंस को मीट कर जाती हैं तो हम जो है फिर आपको SOR 1 ईयर के लिए दे देते हैं क्लाइंट को, और इसके बाद फिर जो है वो सोनकैप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और क्लाइंट इजीली हमसे सोनकैप ले सकते हैं। बहुत शॉर्ट प्रोसेस है और कोई लेंथी इसमें वो नहीं है। इससे बेनिफिट जो है वो क्लाइंट को ये होते हैं कि उनकी रैपिड उनकी जो है वो जैसे डॉक्यूमेंट देते हैं और सेम डे या नेक्स्ट डे उनका सोनकैप सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है। इन केस कि अगर हम प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करते और रूट ए में लेके जाते हैं तो इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, और उसमें पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले PC प्रोडक्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसके लिए लैब टेस्टिंग और वही मार्किंग लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। और उसके बाद जो है फॉर्म M क्लाइंट हमें कस्टम से लेके देता है नाइजीरिया से, और उसके बाद उनकी रिमोटली या फिजिकली इंस्पेक्शन होती है, और उसके बाद जाके फिर उनका सोनकैप सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अब अगर मैं फ़ी की बात करूं तो जो एड वॉल्यूम जो फ़ी का है सोनकैप सर्टिफिकेट का, पहले सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ी बता देता हूँ जो कि हमारे पर ईयर की जो है 1 साल की जो फ़ी है हमारी $300 है, और प्लस 13% जो है गवर्नमेंट का टैक्स है उसमें। तो ये 1 ईयर के लिए आपको पे करनी पड़ती है। और इसके साथ ही अगर आप जो आपके शिपमेंट्स ऑर्डर आते हैं सोनकैप के लिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आप जो है फिर उसमें आपके हर सोनकैप में $300 लगते हैं, और आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है उसमें। That's all. Thank you, Atif sir, for sharing this information with us. Now I would like to request Mr. Zishan Tariq, Chairman SIMA, to share his views. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for organizing this seminar. ये एक बड़ा helpful seminar है क्योंकि हमारे जो आपने जैसा बताया कि कीनिया में हमारा शेयर बहुत कम है and it can increase substantially. अब उसमें जो है रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज हम दो चीजों में लैग कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन में एक मार्केटिंग में, बट मार्केटिंग कैन नॉट बी डन अंटिल द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। उन्होंने बड़ा सिंपल प्रोसेस बताया है लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं रिक्वेस्ट Q&A में हम पूछेंगे। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है, वो ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी ये किस लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश में होगी या उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में होगी। प्लस ये है कि ये जो है अली तमकीन साहब जो हमारे ट्रेड ऑफिसर हैं, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर। उन्होंने सियालकोट भी सर्व किया है, ही नोज द मार्केट, ही नोज आवर इंडस्ट्री। सो आई एम वेरी होपफुल दैट he will be the main reason जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह बढ़ेंगी आगे से। तो इसमें हमें टडैप की हेल्प भी चाहिए होगी, जितनी टडैप हमें हेल्प कर सके। उन्होंने एक अच्छा वेबिनार्स का शुरू किया है
इट इज़ वेरी हेल्पफुल और उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन इतनी ही ईजी है जितना SGS वालों ने बताया है। और इसमें थोड़ा सा हमें TDAP का ताउन चाहिए होगा कि इनको हमारे साथ लाइजन करवा दें, ताकि हमारे जितने मेंबर्स इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो हमारे थ्रू इनके साथ इजीली कांटेक्ट कर सकें, और अगर TDAP इसमें हमारी को हेल्प कर सके तो वी विल बी वेरी थैंकफुल। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। Now, I would like to request Mr. Jahangir Bajwa to share his views. And sir, before you start, I would like to admit here one thing, that you have always been a great support for TDAP, and especially for me, whenever it comes to any problem related to surgical sector. So, special thanks to you for this kind support. Sir, please start. थैंक यू वेरी मच जुनेद। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ाहिर है जी कि जुनेद इज माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल और बड़ा प्रोएक्टिव है और माशाल्लाह हमारे सेक्टर के अंदर मैं ऑलवेज इसकी एफर्ट्स को बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारी सपोर्ट बिल्कुल ये भी जो है ना, ये रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर ही है कि हम भी कर रहे हैं और TDAP की तरफ से भी सपोर्ट है। ये उसी सपोर्ट का नतीजा है कि आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग अबाउट टू एंटर इन अफ्रीकन मार्केट्स इफेक्टिवली। और उसके लिए डेफिनेटली मैं अली तमकीन की एफर्ट्स को भी बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। बिल्कुल सही कहा चेयरमैन साहब ने कि वो सियालकोट के अंदर वो इधर सर्व करके गए हुए हैं और सियालकोट की मार्केट और यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में अली तमकीन को एक बड़ा नॉलेज है और जो उसका उधर मार्केट में एक एसेट साबित होगा। और इसीलिए हमारी होप्स भी जो है ना अली, एक्सपेक्टेशंस भी जो है ना बड़ी हाई हैं अली के मामले में। और बड़े बल्कि मैं साथ ही मैं अली को बड़ा इस पे अप्रिशिएट करूंगा कि हमारे एक मेंबर की तकरीबन 3-4 साल पुरानी पेमेंट, उसके ऊपर अली ने बड़ा इफेक्टिव काम किया। तो आज यानी कि तकरीबन को 2-3 हफ्ते पहले उसकी पेमेंट भी रिलीज हुई। हालांकि हमेशा से जो है ना मसलन हमें हमारी इंडस्ट्री को जो पाकिस्तान की एम्बेसी, जो हमारे ट्रेड ऑफिसर, जो कमर्शियल काउंसिल जो काम कर रहे थे, हमेशा हमें उनसे गिला रहा कि अगर हमारी को पेमेंट्स आउटस्टैंड करती हैं तो उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा नील होती थी, जीरो होती थी। तो एक ये बड़ा एक ताज़ा हवा का झोंका है अली की तरफ से। तो अली, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आल्सो। मैं जनाब बड़ा इसको जो है ना मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ उन सब लोगों को, ये TDAP के आपके जो DG हैं जुनेद फरोज, अली तमकीन और जितने लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, SGS के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं कि ये इनिशिएटिव लिया और आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये एक माइलस्टोन साबित होगा टुवर्ड्स एंटरिंग द मार्केट, अफ्रीकन मार्केट। ये एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये मैंने तकरीबन 2011 में ये तजवीज़ दी थी कि हमें अफ्रीका को फोकस करना चाहिए। लेकिन TDAP के एंड के ऊपर इसके ऊपर कोई तवज्जो ना, एट दैट टाइम कोई तवज्जो ना दी गई। लेकिन फिर क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। अफसोस ये होता है कि यार हमने 9-10 साल ज़ाया कर दिए। फिर ज़हन में ये आता है कि कोई काम अल्लाह की रज़ा के बगैर वो नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की रज़ा जो है उसमें भी नियतों का बड़ा अमल दखल होता है कि आज आप लोगों की नियतें, काम करने की नियत है, आप लोग काम करना चाहते हो, तो आज उसके अंदर हम आप सब इकट्ठे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कैसे हमने जो है ना इस मार्केट के अंदर एंटर होना चाहिए। नाइजीरिया की मार्केट में मैं किसी वक़्त में काम करता हूँ, बड़ी अच्छी मार्केट है और इसमें अपनी इंडस्ट्री के दोस्तों को तो मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप इस मार्केट में जाएँ और क्वालिटी को फोकस करें इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग इन प्राइसेस, क्योंकि ये वो मार्केट है कि ये आपको प्राइस भी देंगे। तो जैसे कि अभी चेयरमैन साहब भी फरमा रहे थे कि ये यानी कि फर्स्ट स्टेप तो यही है। हमने पहले भी जो लास्ट अभी जो हमारा जो एक ज़ूम के ऊपर मीटिंग हुई थी जिसमें आपके ये सारे अफ्रीका में हमारे जितने ये TIOs हैं और आपके मिनिस्ट्री के लोग और TDAP के लोग बैठे हुए थे, उस वक़्त भी हमने यही कहा था कि देखिए किसी भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए आपको उसके दरवाजे से गुजरना पड़ता है। तो ये दरवाज़ा रजिस्ट्रेशन है।
रजिस्ट्रेशन के बगैर मार्केट के अंदर एंटर होना यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं। उसके अंदर आप लोगों को एक तो अवेयरनेस दें, दूसरा ये देखें कि उनको एक तरीकाकार बताएं कि कैसे उन्होंने आना है। देखिए सर्जिकल की इंडस्ट्री जो है ना, ये अभी जो मुझे जो फी का ये बता रहे हैं, ये तो अपेरेंटली तो ये इतनी ज्यादा नहीं है। तो अल्लाह करे कि इसके अंदर कोई, ये हम आतिफ से अभी पूछेंगे क्योंकि इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो उसके ऊपर एक तो ये है कि तरीकेकार को बड़ा सिंपलीफाई, जैसे आतिफ ने ब्रीफ किया तो ज़ाहिर तो ये बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इसके अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। सिमाप इज ऑलवेज देयर टू हेल्प आवर मेंबर्स, और एक ब्रिजिंग का काम करने के लिए भी हम मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये कॉटेज है, और उसके अंदर 98% स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो हैं, दे आर वर्किंग विद लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक तो ये तो सिर्फ अभी नाइजीरिया की बात हो रही है। जब हम पूरे अफ्रीका के अंदर तकरीबन जितने भी अफ्रीका के अंदर कंट्रीज हैं, आई थिंक उसे एक्सपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो मैंडेटरी है। और उसके लिए ये था कि मिल के टीडीएपी भी एसोसिएशन भी कोशिश करेंगे कि हम ये भी देखें कि फाइनेंशियली जो है ना, वो फाइनेंशियली हम कैसे उसको साथ ईडीएफ फंडिंग से अपनी इंडस्ट्री के लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप यकीन माने कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये अब तक अनटैप पड़ी हुई है। उसके लिए अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जा सकती है। और दूसरा, ये वो मार्केट्स हैं, हम हमेशा बात करते हैं ब्रांडिंग की, और ब्रांडिंग के ऊपर मेरे हमेशा ये तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है, अ, उसके लिए इंटरनेशनल ब्रांड डेवलप करना जो है ना वो यानी कि नामुमकिनात में से है। लेकिन जब मैं अफ्रीका की मार्केट को देखता हूँ, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक फेयर चांस है कि इसके अंदर हम अपने जो है ना ब्रांड भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस बात को अली भी शायद सेकंड करें कि इन मार्केट्स के अंदर ब्रांड को डेवलप करना जो है ना वो बड़ा एक आसान काम जो है ना वो बन जाता है। तो उसी के लिए एक तो ये है कि चलें, एक तो इन्होंने ये जो अभी जो बताया ये अपना तरीकाकार, वो जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सारी जो है ना वो उसके लिए एसोसिएशन के अंदर जो है ना वो आप भेजें। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का तयन भी कर लें। और ये बड़ा बेहतर होगा कि हमें पता हो कि जी के अली तमकीन की क्या ज़िम्मेदारी है, टीडीएपी के ज़िम्मे क्या काम है, एसोसिएशन के ज़िम्मे क्या काम है, और जो मेंबर जो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, जो मार्केट के अंदर जाना चाह रहा है, अ, उसकी ज़िम्मेदारी क्या-क्या है। ये ज़िम्मेदारियों का तयन जो है ना, ये भी बड़ा ज़रूरी है उसके अंदर। अ, क्योंकि इसी तरह जो है ना, वो ये मामला जो है ना, वो आगे बढ़ेंगे जो है ना। अच्छा, दूसरा ये बात हो रही थी कि आतिफ ने तो उसके अंदर कोई ज़िक्र नहीं किया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा, कि लास्ट जो हमारी ज़ूम के ऊपर मीटिंग थी जब टीएयूज़ थे फ्रॉम अफ्रीका, उसके अंदर उन्होंने वो बड़ा कुछ सा बड़ा ज़ोर दे रहे थे जी कि आप अपने एजेंट्स जो है ना वो ढूँढें। देखिए, ये अब वक़्त आ गया है कि जिस चीज़ के ज़िम्मे जो काम है उसने करना है। ये काम इस तरह नहीं चलेगा कि मैं अपने ज़िम्मे का काम छोड़ के उसको उठाऊँ किसी दूसरे के कंधे पे डाल दूँ। एक बड़ी एक अंडरस्टूड बात है कि अगर मेरे पास किसी भी मार्केट के अंदर एजेंट मौजूद है, क्योंकि ये एजेंट वाली जो प्रीवी है ना, ये हर जगह मौजूद है। किसी भी कंट्री में आप रजिस्ट्रेशन के हवाले से जाएँ, वहाँ पे एजेंट जो है ना, वो आपको मस्ट चाहिए होगा। और ये देखा ये गया है कि एक-एक एजेंट जो है ना, वो तकरीबन 50 100 कंपनियों की वो नुमाइंदगी कर रहा है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जब आप रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद आपका मार्केटिंग की अपनी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक आप देखें। तो लिहाजा ये कहना जी कि अब आप एजेंट ढूंढें, तो जब एजेंट ढूंढने जाएंगे तो इंडस्ट्री फिर मुतनफर होके वो जाहिर है कि इस तरफ रुख नहीं करेगी। तो ये अली से मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, अभी मैं यही कहूंगा कि इस मामले के ऊपर भी जो है ना आप इंडस्ट्री को हेल्प आउट करें। और दूसरा ये देखें कि एक तो जाहिर है कि रजिस्ट्रेशन का मामला, आतिफ से ये भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली ये भी बताएं कि इसमें टाइम पीरियड जो है ना रजिस्ट्रेशन के वाले से कितना टाइम जो है ना वो रिक्वायर्ड है। और दूसरा ये है कि उसका फ़ॉलो-अप ज़ाहिर है कि जब हम फ़ी पे करेंगे, एसजीएस के थ्रू करेंगे, तो फ़ॉलो-अप भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन मेरी ये ख़्वाहिश है जी कि हर एम्बेसी के अंदर, अफ्रीका के अंदर
या तो आप किसी को एक को हब बना लें और सारे अफ्रीका को उसके अंदर आप देखें, और वहाँ पे हमारा किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर करें जो उसका प्रॉपर फॉलो अप रखे, और ये सारी चीजें जो है ना, और इसी तरह आप किसी एजेंट को भी ऑन बोर्ड लें, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने एजेंट का नाम ही डालना है, और उसके लिए भी उनको ऑन बोर्ड लें, ताकि ये देखें कि आप मैक्सिमम इंडस्ट्री को कैसे जो है ना उसमें अंदर वो फैसिलिटेट जो है ना वो कर रहे हैं। तो बस ये है जी कि चले आज तो ये शुरू हुआ है। मैं एक बार फिर सब दोस्तों को, मैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं ये दुआ गो हूँ कि ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है, अल्लाह ताला की ज़ात इसके अंदर बरकत दे, और हम ये अच्छे तरीके से इसको लेके चले। इंडस्ट्री से फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली काइंडली अब वक्त आ गया है कि सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। पूरी दुनिया के अंदर कोई कंपेटिटर आपका नहीं है, तो इस चीज को अब कैश कराएं, आगे बढ़ें, और ये जो है ना इसका जितना भी बेनिफिट उठा सकते हैं उसको उठाएं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया। So thanks a lot for your valuable inputs. Now I would like to request our star TIO, Mr. Ali Tamkeen Bhatt, to share his views on the available opportunities in Nigeria. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा सर, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए। टीडीपी का डीजी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, आसिफ साहब का कि उन्होंने टाइम निकाल के हमारी जो कंपनीज है उनको रजिस्ट्रेशन पे जो मामलात है समझाने के लिए पार्टिसिपेशन की। देखिए कुछ बुनियादी बातें जो सिर्फ मैंने अभी करनी है, क्योंकि मेरा मकसद है कि हम आसिफ साहब से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकें, क्योंकि मेन अभी फर्स्ट स्टेज पे हमने रजिस्ट्रेशन को समझना है। लेकिन जो बुनियादी बातें मैं नाइजीरिया के बारे में आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि नाइजीरिया नो डाउट एक बहुत बड़ी मार्केट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट है। वेस्टर्न अफ्रीका पूरा इस पर डिपेंडेंट है, इसकी पोर्ट्स पे जो वेस्टर्न अफ्रीका के ऊपर के ममालिक है वो डिपेंडेंट है। तो अगर आप नाइजीरिया में पेनिट्रेट करते हैं, इट मीन्स कि आप 15-20 ममालिक को एट अ टाइम टच कर सकते हैं, क्योंकि नाइजीरिया का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है। और नाइजीरिया इन इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है, यानी 200 मिलियन से प्लस की इसकी आबादी है, और कुछ सालों तक ये पाकिस्तान को भी क्रॉस कर देंगे आबादी के अंदर। और इंडियन आपके सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह का सामान वो बेच रहे हैं वो मैंने खुद देखा है, वो तो सियालकोट के सामान के आसपास भी नहीं है, मगर बड़े अच्छे प्रॉफिट भी वो कमा रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहला जो जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ, जिसमें मुझे आपकी भी इनपुट चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे और उसमें फैसिलिटेट करेंगे। जिस तरह मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ईडीएफ के जरिए हम कंपनीज को सपोर्ट करेंगे कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके, फाइनेंशियल एस्पेक्ट यानी कि। दूसरा ये कि यहाँ पे जो एग्जीबिशंस होते हैं वो हमने ऑलरेडी टीडीपी को रिकमेंड किए। टीडीपी के कैलेंडर के अंदर भी उसमें एग्जीबिशन है मेडिकल अफ्रीका, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टैंड्स बढ़ जाए, सियालकोट की कंपनीज उसमें आ सकें, और उसमें ऑलरेडी हम सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जनरली जो लुक अफ्रीका पॉलिसी के अंदर 80 और 20 का जो है रेशियो, उसके साथ सब्सिडी दी जाती है। तो सेकंड स्टेज पे हम मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। थर्ड स्टेज पे जिस तरह ब्रांडिंग की बात की है, ब्रांडिंग पे हम ग्रेजुअली तब फोकस करेंगे कि वंस वी आर एबल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन नाइजीरिया। उसके लिए हमें एक बिजनेस मॉडल डेवलप करना है कि किस बिजनेस मॉडल को हम फॉलो करके नाइजीरिया में आ सकते हैं। अमूमन तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मुझसे या बाकी पीआईओ से भी, तो वो कि जी आप हमें इम्पोर्टेंट की लिस्टें भिजवा दें। देखिए मैं यूरोप या अमेरिका के बारे में तो इसके हक में हूँ कि आप रिपोर्टर की लिस्ट लेके काम कर लें, लेकिन अफ्रीका में इस तरह नहीं चल सकेगा। आप लिस्टें ले लेंगे तो वो जवाब ही देंगे, और अगर आप वो जवाब दे भी देंगे तो ग्रेजुअली यू विल एंड अप इनटू अ ट्रेड डिस्प्यूट। वो किस तरह? वो इस तरह कि अफ्रीका में पेमेंट के बड़े मसाइल हैं, एक तो बैंकिंग चैनल थोड़े कमज़ोर है, दूसरा अफ्रीकन ममालिक वैसे भी डॉलर की जो फ्ली है ना उस पर पाबंदी लगाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, जहाँ पे उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हो सकता है वो बॉर्डर क्रॉस करके मुल्क में तो आ जाए, लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी तो आपका जो बायर है वो आपको पेमेंट बैंक के जरिए नहीं दे सकेगा। फिर ग्रेजुअली वो इस तरह के चैनल यूज़ करेगा जिसमें आपके लिए भी परेशानी होगी और पेमेंट भी आपको टुकड़ों में मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट स्टेज में इसको फॉलो कर रहे हैं
कि एक तरफ हम मार्केट में पेनिट्रेट कर सकें, दूसरी तरफ हम पेमेंट्स को भी सिक्योर कर सकें। तो इसलिए पहली स्टेज पे हमारा रजिस्ट्रेशन पे फोकस है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कि हर एक शख्स या हर अदालत की जिम्मेदारी कबूल कर ले, तो क्योंकि ये है एक टीम वर्क, तो विदाउट टीम वर्क हम इस मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मैं सियालकोट से हूँ, आप लोग साथ मैंने पिछले 8-10 साल काम किया है, मुझे आपकी पोटेंशियल का भी पता है, मुझे प्रॉब्लम्स का भी पता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वाइबल, एक फैसिलिटेटिंग किस्म का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए पैदा करूँ, ताकि आपकी एक्सेस डायरेक्ट कस्टमर तक हो सके, क्लाइंट तक हो सके, मार्केट तक हो सके, ताकि आपके प्रोडक्ट मार्केट पे आ सके। क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, खासतौर पे जैसे ऑर्थो के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे ऑर्थो के प्रोडक्ट की बड़ी सी डिमांड है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है इनको, तो ग्रेजुअली वो इंडिया की तरफ ही जाते हैं। इंडिया वाले जो है उनके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी वेयर हाउसिंग है, उनकी हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, एक पूरा सप्लाई चेन का प्रॉपर सिस्टम है यहाँ पे। वो उस पर खैर अभी हम बात नहीं करते, बट एनी हाउ, तो इसका बुनियादी फोकस हमारा ये है कि हम रजिस्ट्रेशन को फोकस करें, चीज़ों को समझ लें, और ग्रेजुअली फिर मैं आपको क्लाइंट्स के ज़रिए इस रजिस्ट्रेशन में मज़ीद हेल्प करूँ, आपको ऑर्डर दिलवाऊँ, आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स को फैसिलिटेट करूँ, प्रमोट करूँ। ये हमारा बुनियादी साइकिलिंग स्ट्रेटजी है यहाँ पे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें ये है कि हमें देर चले होगी, ये हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आज भी इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि अगर हम मिल के एफर्ट करें तो हम अच्छा खासा यहाँ से मार्जिन निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, बहुत नीचे तक भी जा सकती है, बहुत ऊपर तक भी जा सकती है। मार्केट फोर्सेस यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि मिट्टी भी यहाँ पे बिक जाती है, यहाँ के तो ये हालात हैं, और ना तो सोना भी नहीं बिकता। यहाँ की डायनामिक्स डिफरेंट है, तो हमें उसको समझ के स्ट्रेटजी बना के मिल के काम करना है। मेरी गुजारिश जो आखिर में है वो यही है कि देखें, हमारे सर्जिकल सेक्टर, हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर, लेदर या और बाकी जो सेक्टर्स हैं, वो जनरली यूरोप या अमेरिका को लेके उनका एक्सपोजर है। वो चीज़ें या वो चीज़ें जहाँ पे उसका से काम नहीं आ सकता, इसके लिए हमें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट मॉडल पर काम करना है। तो मेरी गुजारिश है कि हम रजिस्ट्रेशन पर भी फोकस करते हैं, ग्रेजुअली एजेंट्स और जो मार्केटिंग एफर्ट्स है, जो हमारी बाकी मार्केट एक्सेस की जो बाकी सारे मामलात हैं, हम उसको मिल के लेके चलेंगे। तो ये यहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि हम आतिफ साहब से मज़ीद सवाल पूछें, ताकि जो चीज़ें हमें क्लियर नहीं है उस पर हम फिर बात कर सकें। अच्छा, एक आखिरी बुनियादी बात, बिलाल साहब आगे तो मुझे उनका सवाल याद है कि लास्ट मीटिंग में उन्होंने टेंडर की बात की थी, तो उसमें भी मैंने वर्किंग की है। टेंडर के लिए बुनियादी तौर पे यहाँ पे हमें कंपनी से रजिस्टर करवानी पड़ती है, उसके बगैर हम पाकिस्तानी कंपनी से डायरेक्ट टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं। तो उस पर मैं आपसे डिटेल बाद में शेयर कर लूँगा, मैंने पूरे बनाया हुआ फॉर्मेट। तो अब मेरी गुजारिश है कि मातिफ साहब से मज़ीद सवाल पूछ लें, ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो जाए। मैं शुक्रिया मेरी तरफ से। Sir, thanks a lot for your valuable inputs. Definitely we'll go back to Atif Saab for clarifications and for further questions. But before that, I would like to request Mr. Mudassir from Ministry of Commerce to share his views on Look Africa policy, please. Mudassir Saab. है हमारे साथ? I guess there is some internet connection problem with Mr. Mudassir. So I would suggest we should start our question answer sessions. And whatever clarification is required from Mr. Atif, we can start it one by one, please. किसी को कोई भी सवाल करना है आतिफ साहब से, तो प्लीज सवाल वन बाय वन शुरू कर लीजिए। आतिफ साहब, एक मैं चलिए पहले सवाल पूछ लेता हूँ। ये जो आतिफ साहब रूट बी और रूट ए जो आपने दो चीज़ें बताई हैं, इसमें पहले तो मुझे सर ये बताएं कि आपने कहा कि टेस्टिंग और लेबलिंग,
टेस्टिंग के लिए जो लैब 17025 जो लैब है, ये अगर इसकी फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड करते हैं अगर हमने टेस्टिंग करवानी हो। और दूसरा ये कि अब हर शिपमेंट के ऊपर हमें अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो आपने ये बताया स्टेटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 साल का है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये हर शिपमेंट पे चलेगा। मतलब एक शिपमेंट हम भेजते हैं इस साल जुलाई में, तो आप हमें उस शिपमेंट के सिर्फ स्पेसिफिक केस वाला सर्टिफिकेट देंगे। अगली शिपमेंट अगर हमारी जाती है अक्टूबर में, उसके लिए दोबारा फिर हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये जरा प्लीज दो चीजें बता दीजिएगा। जी अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। जी थैंक यू। अच्छा देखें, रूट ए और रूट बी। रूट ए में तो अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट होता है, तो उसमें हमें एवरी शिपमेंट में जो है लैब टेस्ट भी रिक्वायर्ड होती है और इंस्पेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की, जब हम 1 साल के लिए SOR के ले लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 1 टाइम हमें लैब टेस्ट रिक्वायर्ड होती है। और उसमें जिस तरह से मैंने अभी डिस्क्राइब किया था कि हमें इसमें एक तो बेनिफिट क्लाइंट को ये होता है कि उसमें इंस्पेक्शन जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, और दूसरे लैब टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट 1 साल तक उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होती। और उसमें क्लाइंट को हर ऑर्डर पे सोनकैप सर्टिफिकेट सिर्फ लेना पड़ता है। और यही इसमें मतलब रूट बी में आपको यही सिंप्लीफाई हो सकता है इसमें। और बाकी रह गया रूट ए, जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें हर शिपमेंट में लैब टेस्ट रिक्वायर्ड होती है, तो यस इसमें हर शिपमेंट में आपको लैब टेस्ट रिक्वायर्ड होगी और प्लस इंस्पेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होगी इसमें। लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से सजेस्ट यही किया था कि रूट ए जो है उसमें क्लाइंट को डबल फी चार्ज होती है। एक तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेट क्लाइंट को लेना पड़ता है, और देन जो है फिर वो सोनकेप सर्टिफिकेट की फी क्लाइंट पे करता है। लेकिन रूट बी जो है उसमें जस्ट 1 ईयर के लिए आप SOR की फी आप पे कर देते हैं, तो आपको सिर्फ सोनकेप की शिपमेंट, आपको ईच शिपमेंट में आपको सिर्फ सोनकेप की आपकी पेमेंट देनी पड़ती है उसमें। और वो That's it. जो है $300 है जो शोरूम के। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन था कि मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि लैब जो है वो एक्रेडिट होनी चाहिए 17025 की। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड्स होता है कि हम लैब, कोई लोकल लैब को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और SGS जो है वो एक्रेडिट लैब है, आप SGS से करवा सकते हैं। और सेकंड, मैंने आप लोगों से ये डिस्क्राइब किया था कि अगर क्लाइंट के पास ISO 9001 की लैब है, तो they may proceed lab testing and we can accept their report. So अगर क्लाइंट अपने इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट करवाता है, तो हम क्लाइंट की इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर पैरामीटर। जो मैं आपको पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा, उस पैरामीटर के अगर आप लोग लैब टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसमें। सर जो थैंक यू। आप टेस्टिंग करेंगे उसके आप अलग से चार्ज करेंगे? जी, लैब टेस्टिंग की फी जो है हमारा एक सेपरेट डिपार्ट है, तो वो जो भी आपकी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली जो फी होगी वो आपसे सेपरेट चार्ज करेगा उसमें। और जो हर शिपमेंट पे आप हमें सोन के सर्टिफिकेट इशू करेंगे रूट बी के अंडर, उसका भी आप अलग से चार्ज करेंगे? देखिए, अगर रूट बी की मैंने बात की है, तो अगर सोनकेप सर्टिफिकेट की फी चार्ज होगी आपकी। हर जो भी आपका न्यू ऑर्डर आएगा, चाहे 1 महीने बाद आए या 1 हफ्ते में 2-3 आपके ऑर्डर आए, उसके हर शिपमेंट में आपका सोनकेप की फी चार्ज होगी। अब ये डिपेंड ऑन यू, अगर आप एक BL के ऊपर 3-4 शिपमेंट कर सकते हैं, तो हम आपसे एक ही फी चार्ज करेंगे उसमें। तो सर वो और अमूमन किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जो एड वॉल्यूम होता है वो डिपेंड ऑन द FOB वैल्यू which is 0.53%, or our minimum amount is $300 plus 13% tax. अगर आपकी FOB वैल्यू जो है वो अंडर 50,000 हो, तो हमारा एक जो एड वॉल्यूम जो है वो $300 प्लस 13% टैक्स है। अगर आपकी FOB वैल्यू बढ़ जाती है, 60,000 हो जाती है, 70,000 हो जाती है, तो देन हम जो है 0.5% के हिसाब से चार्ज करते हैं उसमें। इदरीस मोहम्मद साहब, आपकी तरफ से सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा, मैंने ये पूछना था कि इसमें टाइम कितना आप रिक्वायर करते हैं? एक्चुअली थोड़ा सा मेरा कांटेक्ट है अफ्रीकन मार्केट से, तो उसमें जैसे कीनिया में फिर आपको शिपमेंट की वो एसएससी से इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, बड़ी बड़ी देर उसका टाइम मिलता है, वो टाइम उसमें काफी गुजर जाता है। जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लगता, जस्ट आपकी डिपेंड होता है कि अगर आपकी लैब टेस्ट रिपोर्ट आप हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका विदिन 24 आवर्स में जो है आपका एसओआर जो है वो आपका बन जाता है। ये ठीक हो गया। लेकिन सर बात सुने, जो जो लैब टेस्ट इनको कह रहे हैं प्रोवाइड करें, ये लैब तो एयरपोर्ट पे नहीं है। इस तरह की लैब हमारे पाकिस्तान का ये तो बड़ा मसला है कि लैब नहीं हमारे पास। तो अगर ये लैब ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे तो वो तो डिले हो जाएगा। उसमें आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर ये कहे कि हमें जल्दी टेस्टिंग करवानी है तो आप इसको जल्दी टेस्टिंग करके इनकी जो रजिस्ट्रेशन के मामला है उसको मैनेज कर सकते हैं, ये करते जी हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बोला है एसजीएस जो है वो भी एक्रेडिटेड लैब है। तो अगर जो पैरामीटर आप लोग एचएस को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद जो पैरामीटर हम आपको देंगे, तो अगर वो एसजीएस कर सकती है तो हम लोग ज़रूर इसको करेंगे। इन केस के अगर एसजीएस नहीं कर सकी उस टेस्ट को और कोई अदर लैब जो है वो पाकिस्तान में नहीं कर सकी, तो आप कोई भी नेबरहुड जो कंट्री है वहाँ पर आप मूव कर सकते हैं और वहाँ से आप लैब टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं उसका। आप सब अपने माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो आतिफ साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जो आपने बताया था कि इसकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस $300 प्लस 13% टैक्स है, तो जब हम इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि उसमें भी सिर्फ लैब टेस्ट वगैरह या इस तरह यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने बताए, या इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए? और सेकंड पार्ट है मेरे क्वेश्चन का कि इसमें कोई और चार्जेस भी हैं जिनका नहीं अभी बता रहा है, तो उस टाइम फिर एज पर कंडीशन या एज पर रिक्वायरमेंट कोई और चार्जेस भी होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं? आतिफ साहब, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपने सुन लिया जी। क्वेश्चन ना? जी असल में मैं ये बता रहा था कि स्टार्टिंग में जो है वो सिर्फ लैब टेस्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है और मार्किंग की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप कहीं से भी लैब टेस्ट करवाएंगे वो आपके चार्जेस जो भी होंगे वो आपको लैब बताएगी। बाकी जो मैंने आपको सर्टिफिकेट की जो फी बताई है मैंने एसओआर की, सिर्फ हमारी वही फी होती है और कोई हिडन चार्जेस के अलावा रजिस्ट्रेशन में नहीं होते। जी हेलो आतिफ, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है हेलो, आपकी। अच्छा एक तो ये है कि आपने ये जितनी भी ये जो ब्रीफिंग दी है ना रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो ये आप अली के थ्रू सारी एसोसिएशन से शेयर कीजिएगा। प्लस जाहिर है कि मोस्टली जो हमारी इंडस्ट्री है वो क्लास 1 डिवाइसेस के अंदर है, क्लास 2 के अंदर भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है क्लास 1 में है। अब क्लास 1 के लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड है उसकी भी डिटेल आप हमें भेजें, ताकि हम ये देखें कि कौन कौन सी लैब से उनकी अवेलेबिलिटी है, और ताकि उसका प्राइस का कंपैरिजन भी जो है ना किया जा सके और उसमें इंडस्ट्री को हेल्प आउट किया जा सके। जी हेलो। जी आपने सुना? Actually, I'm getting distortion in your voice. Let me talk. मैं आपको ये कह रहा था कि आप मुझे क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं, मैंने मेरी ईमेल आईडी पे और मेरा नहीं, जो मैं आपने कॉन्टेक्ट। मेरी सॉरी आतिफ, जो भी मैंने आपने सुना जो मैंने अभी बोला आपको, जो रिक्वेस्ट की है मैंने? सर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई है, आप दोबारा बोलेंगे? जी मैं उसमें ये कह रहा था कि एक तो आपने जितना भी ये ब्रीफिंग दी है ना, ये अली तमकीन के थ्रू आप सर्जिकल एसोसिएशन के साथ शेयर कर दीजिएगा। हेलो हेलो, यस मैं शेयर कर दूंगा। हेलो। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी इंडस्ट्री की जो मेजॉरिटी है वो क्लास 1 में डील कर रही है, क्लास 2 में भी है, क्लास 1 में डील कर रही है। क्लास 1 के लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं उनकी भी डिटेल आप भेज दीजिएगा, क्लास 2 की डिटेल भी भेज दीजिएगा,
ताकि हम उनकी अवेलेबिलिटी देखें कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी लैब में उनकी अवेलेबिलिटी है और उसका प्राइस का कंपैरिजन भी हम कर सकें। Okay, fine. ठीक है, ताकि हम इसके पूरा एक सामने आ जाए ना, ताकि रजिस्ट्रेशन की हर चीज जो है ना हमारे सामने हो, उसमें हम देखें हम अपने मेंबर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। आतिफ साहब, मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर आप अपने कॉन्टैक्ट पर्टिकुलर्स चैट बॉक्स में अभी मेंशन कर दें तो वो सबके लिए आसानी होगी नोट करना। और कोई क्वेश्चन अगर किसी पार्टिसिपेंट ने करना है? Okay, now we have Mr. Mudassir from Ministry of Commerce with us. So I would request him to please share your views with us. मुदस्सिर साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, so we are considering it as the end of our webinar, and in the end I would like to thank all the worthy participants for exchanging their valuable inputs. I believe that such endeavors would surely open new doors for our surgical sector. And this is the end of our webinar. Thank you.